So, hi everybody. I'm Professor Sandeep Gupta here. So, please confirm that you can hear me, you can see me, and you can also see my screen. Please confirm. Yes, sir. Okay, thank you, Dhwani. All right. So, today we have this SAS, that is subject awareness session about C programming, which in short is called C programming. Okay. अभी इसी सब्जेक्ट को दो तीन साल पहले तक कहा जाता था SPA, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो अगर तुमको कोई बोलता है SPA, तो दैट इज नथिंग बट CP, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। अभी जो मुंबई यूनिवर्सिटी के नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस है, नॉन ऑटोनोमस, उसमें सीपी में सिर्फ सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। एंड कोई कोई ऑटोनोमस कॉलेजेस में सी प्रोग्रामिंग एंड C++ प्रोग्रामिंग भी पढ़ाया जाता है। So the course which we are going to take in engineering minds, उसमें first will teach you C programming and then C++ programming, both in the same price, in the same course. Okay. C++ आने के लिए पहले C आना जरूरी है। ऑल्दो 11th 12th में ऐसा नहीं करते, जो एक काइंड ऑफ गलत है, बट बेटर है कि पहले हम C प्रोग्रामिंग करें फिर C++। एनीवे, so now you know what the subject CP contains. So basically the subject CP contains a programming language called C. Now the next question is कि programming का क्या मतलब होता है? तो programming का मतलब होता है writing a program. So whenever you write a program, that activity of writing a program is called programming. So finally, the next question is, what is the meaning of a program? What is the meaning of the word program? Okay, now I want to know that how many of you know the meaning of the word program? And I promise you, trust me, मैं तुमको पूछूंगा नहीं. Okay, I won't ask you the meaning of the word program. I just want to know that how many of you know the meaning of the word program. तो जिसको इसको पता है, please raise your hands. Come on. जिसको इसको मतलब पता है, please raise your hands. Let me see. And once again, I promise you, I won't ask you that what is the meaning. I just want to know. So as of now, 3 people, 3 students. Once again, let me repeat. I am not going to ask you its meaning. I just want to know how many of you know the meaning of the word program. ये क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इसका एक रीजन है. All right, 6 people out of 55. Anyone else? Okay. So now, the first thing which you should observe, which you should notice over here, that out of 55 participants over here, only 6 students told me that they know the meaning of the word program. And here the problem starts. You will be studying a subject called C programming. In fact, if you're doing computer engineering, IT and others, you will be acquainted with programming. Okay, you will have to use programming heavily, but you don't even know the meaning of the word program. Okay, तो एक काम करते हैं, पहले ना प्रोग्राम क्या होता है उसका मतलब समझते हैं, क्योंकि अगर तुमको प्रोग्राम का मतलब ही नहीं पता है तो ऑब्वियसली तुम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, so now I'll dictate you the meaning of the word program. Preferably write this. This is probably the only thing which I'll make you write. Okay, so preferably इसको लिखो. Okay, and लिखते वक्त ध्यान. Come on, take a pen and a paper. Okay, and write the meaning of the word program. If you want, I'll wait for you a few seconds just in case you don't have a pen and paper and you want to bring it. So एक pen paper लेके आओ. Come on quickly. Meanwhile, I'll wait for you. Garv and Sanket, you can put your hands down. Okay, so I'll dictate its meaning, or please इसको लिखो. Okay, if I'm making you write, it is for a reason. लिखो. Right. Point number one. You're writing the definition of program. Just give the heading program. Under that, point number 1. लिखो. A program is a sequence of instructions which reads data, comma, processes it,
and gives the desired output. मैं फिर से पूरा रिपीट करता हूं. A program is a sequence of instructions which reads data, comma, processes it and gives the desired output. Point number two. In other words, a program is a sequence of instructions to the computer for performing a particular task. Point number 3, a program is always written in programming language. A program is always written in programming language. ठीक है, अभी एक एक करके ना ये तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं. ये लगता सिंपल है बट इतना सिंपल नहीं है. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो आई कैन सी ध्वनि शिरडी वाला इन द पार्टिसिपेंट्स. Dhwani, can you read point number 1 for us if your mic is working? A program is a sequence of instructions which reads data, comma, which processes it and gives desired output. ठीक है, तो जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो अब प्रोग्राम में क्या होता है, उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एंड सो ऑन. अब ये सब इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या काम करते हैं? सो दीज इंस्ट्रक्शंस विल फर्स्ट read some data from the user, then these instructions will process that data and in the end they will give you the desired output, that is the desired result. अभी तुम में से कोई बोलेगा सर ये तो खाली आपने डेफिनेशन रीड किया. ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है. ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव. ओके, एंड बाय द वे दोज हु हैव ऑलरेडी डन C++ प्रोग्रामिंग इन 11th 12th, ओके, please stay with us because there could be an eye opener for you towards the end of the session. Okay, so please stay with us. अच्छा, अभी ये जो एक पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 1, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, now let's say I don't know how to add two numbers. समझो मुझको है ना 2 नंबर्स ऐड करना नहीं आता है and I am asking you that please add 2 numbers for me. मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्लीज मुझको मेरे लिए 2 नंबर्स ऐड करके दो ना. I don't know how to find the sum of 2 numbers. So now what is the first question which you will ask me? I am asking you that give me the sum of 2 numbers. So anybody give me the answer. What is the first question which you will ask me? Sir, which 2 numbers? Very good, Sanket. देखो, पहली बात तो ये कि अगर तुमको प्रोग्रामर बनना है ना, प्रोग्रामर, तो सबसे पहले you should have common sense. अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है ना तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो. तो अभी कॉमन सेंस की इधर बात क्या है, क्या मैंने तुमको बोला अरे मुझको 2 नंबर का सम दो ना, तो तुम्हें मुझको ऑब्वियसली पूछना चाहिए कि 2 नंबर सर विच आर द 2 नंबर्स. तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम मुझसे 2 नंबर्स रीड करोगे. तो समझो तुमने मेरे से 2 नंबर्स रीड किया एंड दोस 2 नंबर्स आर 5 and 6. अभी 2 नंबर्स रीड करने के बाद बोलो तुम अपने माइंड में क्या करोगे. कम ऑन, unmute and tell me. You will add 5. Very good. You will add 5 and 6 in your mind. So in other words, what you are doing is you are doing processing on those 2 numbers. Acha, now your mind knows that the result is 11. तुमको पता है कि result is 11. Now will you keep quiet or will you speak out the result? Obviously you will speak out the result, so you will tell me that the result is 11. ठीक है, तो बेसिकली जब भी तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, तो प्रोग्राम क्या करता है, वो यूजर से ना डेटा पहले रीड करता है, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है और फिर तुमको कोई ना कोई रिजल्ट देता है. अब तुम दुनिया का कोई भी प्रोग्राम लिखो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, whether you are writing a program to add 2 numbers or whether you are writing a program to send a rocket to moon,
हर प्रोग्राम में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इनपुट का मतलब होता है डेटा को रीड करना, प्रोसेसिंग का मतलब होता है उस डेटा पे वर्क करना, और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट जनरेट करना। ठीक है, अच्छा अभी पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। सो अंश गुराव, कैन यू रीड पॉइंट नंबर 2 फॉर मी? अंश, इफ योर माइक इज वर्किंग। ओके, दिया शेट्टी, कैन यू रीड पॉइंट नंबर 2 फॉर मी? दिया शेट्टी। All right, anyone else? Anyone else? Can you read point number 2 for me? Yeah, Karthik, read karo. In other words, a program is a sequence of instruction to the computer for performing a particular task. ठीक है, now I want everybody to underline the words to the computer. अभी ये लगता अनइम्पोर्टेंट है, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सो अंडरलाइन द वर्ड्स टू द कंप्यूटर, कम ऑन। ठीक है, अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो देखते हैं, ध्यान से सुनना। अभी जब हम बाइक चलाते हैं तो हम रास्ते पे ना एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वेयर हेलमेट। ओके, या चलो बाइक चलाते हैं वो छोड़ो, हम रास्ते पे ना एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वेयर हेलमेट। फिर रास्ते पे हम एक और इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वेयर सीट बेल्ट। तो मुझे एक बात बोलो, ये जो इंस्ट्रक्शन है वेयर सीट बेल्ट, ये किसके लिए होता है? एक 4 व्हीलर के ड्राइवर के लिए या 2 व्हीलर के ड्राइवर के लिए? वेयर सीट बेल्ट, 4 व्हीलर। बराबर, वेरी गुड। और उसी तरह से वेयर अ हेलमेट वो 2 व्हीलर वालों के लिए होता है, करेक्ट? So the point which I am trying to make is that every instruction is meant for somebody. For example, जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां लिखा होता है वेयर अप्रोप्रिएट स्विमिंग क्लोथ्स, ओके, और वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो वो इंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है? वो उस आदमी के लिए होता है जिसको स्विमिंग पूल के अंदर जाना है, उतरना है, बराबर। सो एक सिंपल बात ये है कि हर इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी के लिए होता है। इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स समबडी। सो अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम, तो हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम एक कंप्यूटर को बोलते हैं, देख कंप्यूटर, तेरे को 5 और 6 रीड करने का, फिर देख तेरे को अपने सीपीयू में उसको ऐड करने का, फिर तेरे को अपने स्क्रीन पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने का। सो अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ये तुमको याद रखना है। तो प्रोग्राम तुम कंप्यूटर के लिए लिखते हो। चलो ना, एनीबॉडी रीड पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 कोई भी रीड करो, कौन? या ध्वनि, रीड इट। A program is always written in programming language. हाँ, अभी एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। Languages like English, Hindi, Marathi, Gujarati are called natural languages using which we human beings communicate with each other. But if we want to communicate with the computer, we cannot communicate in Hindi, English, Marathi. We have to use a special category of language, जिसको बोलते हैं programming language. So a program is always written in a programming language. So in your first semester of engineering, you'll be writing lots and lots of program in a programming language called C. So तुमको I hope मुझे समझा, I hope तुम्हें ये समझना आएगा कि प्रोग्राम क्या है। So in very simple words, when you write a program, all you do is you communicate with the computer. You make the computer do some work. So that is a program. Okay. Now, having understood what is a program, let's understand a few problems which you may face in the subject of CP. क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स फेस करो, यानी प्रॉब्लम समझोगे तो ही तुम्हें सीरियसनेस आएगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। तो तुम बोलोगे प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? तो प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ न्यू सब्जेक्ट एंड एनीथिंग व्हिच इज न्यू इज ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने लाइफ में 13 का टेबल पहली बार कभी पढ़ा था? बताओ, कम ऑन, अ रैंडम गेस, बोलो। 5th standard. हाँ चलो, 5th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जब 5th स्टैंडर्ड में तुमने 13 का टेबल पहली बार पढ़ा था, तभी शायद तुमको बहुत डिफिकल्ट वो लगा होगा। इनफैक्ट तुम में से कोई अपने मन में बोल रहा रहेगा, सर मेरे को तो अभी भी उसको डिफिकल्ट लगता है।
okay, but that's a different thing. So the whole point I'm trying to make over here, okay, कोई भी चीज अगर नई होती ना, नई, न्यू, it is automatically difficult. Till 5 minutes back, 5 मिनट पहले तक बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम का भी मतलब नहीं पता था. All right, तो ऑटोमेटिकली दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. अभी देखो, एक और बात समझो, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव. ओके, क्या होता है ना कि ये सब्जेक्ट में जो भी तुम पढ़ोगे वो तुम पहली बार पढ़ोगे, इसके पहले तुमने ये कभी नहीं पढ़ा है. ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई थिंग्स विल बी डिफिकल्ट. Not only that, there is one more problem with this subject, and in this the problem is, in this subject there are no methods and every problem is a new problem. I repeat, there is no methods, there are no methods and every problem is a new problem. अभी इसका क्या मतलब है, तो ये भी थोड़ा हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बोलो. अभी हो सकता है तुमने अभी तुम्हारा सीईटी का एग्जाम दिया. ओके, हार्डली मेरे को लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ है. ओके, अभी तुम्हारी सीईटी एग्जाम में जब तुमने कोई क्वेश्चन देखा, कोई समझो मैथमेटिकल प्रॉब्लम तुमने देखा. ओके, मेरा क्वेश्चन समझना, बिकॉज द आंसर इज वेरी सिंपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग. तुम्हारे सीईटी एग्जाम में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, समझो तुमको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया है और उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को तुमको सॉल्व करना है. तो तुम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन? ये तुमने क्वेश्चन रीड किया, उसको अभी तुमको सॉल्व करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच स्ट्राइक्स यू, व्हिच कम्स टू योर माइंड? कैन यू टेल मी? The concept of it. Yes, the concept involved, in other words, the method involved. Okay, अगर तुमको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया है तो तुम ये सोचोगे कि अरे ये प्रॉब्लम कौन से मेथड पे बेस्ड है. ओके, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया गया है, या कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैकेनिक्स का, बीडब्ल्यू का प्रॉब्लम दिया गया है, तो यू विल ट्राई टू फर्स्ट फिगर आउट द मेथड. एक बार तुमको मेथड स्ट्राइक हो गया, ओके, तो उसके बाद तो तुम सेम ही फॉर्मूला यूज करोगे, खाली तुमको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, एक सिंपल, अगर एकदम सिंपल एग्जांपल ले, जहां तक मेरा ख्याल है, ओके, आई वाज वेरी बैड इन मैकेनिक्स, सो आई थिंक दैट डिस्टेंस कवर्ड, मैकेनिक्स से मेरा मतलब है फिजिक्स, so I think that in physics the distance covered is equal to speed into time. Am I right? Yes. Okay. Yes, अब sir. ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला, आई मीन एकदम सिंपल बात बोल रहा हूँ कि मुझको इससे ज्यादा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कन्वे माय पॉइंट. तो अभी होता क्या है कि अगर मुझको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आया है जहां डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, और मुझको कहा गया है कि स्पीड फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझको ये फॉर्मूला आता है, ये मेथड आता है, तो ऑल आई विल डू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मेरे को स्पीड मिल जाएगा. ठीक है, सिंपल. तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में ना ये होता है, बट सीपी में क्या होता है ना, देयर इज नो मेथड एंड एवरी प्रॉब्लम इज अ न्यू प्रॉब्लम. जैसे तुमको क्वेश्चन आएगा, write a C program to find factorial of n. Okay, write a C program to display whether a given number is a prime number or not. अभी जो लॉजिक तुम फैक्टोरियल में यूज करोगे वो प्राइम नंबर में यूज तुम नहीं कर पाओगे. इन अदर वर्ड्स, अगर तुमको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना है ना, तो तुमको चाहिए लॉजिक डेवलपमेंट. ओके, now can any one of you define the word logic for me? I mean, मेरे को प्रॉपर ऐसा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं चाहिए, हिंदी में बोलो, मराठी, गुजराती में भी बोलो तो भी चलेगा. लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक का क्या मतलब है, बोल सकते हो? एक अप्रोक्सीमेट डिस्क्रिप्शन, कम ऑन. सो लॉजिक का मतलब होता है द स्किल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, द आर्ट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, and that art cannot be learned, it has to be developed. यानी जब तुम्हारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा, ओके, बिगिनिंग में, सेमेस्टर 2 के बिगिनिंग में जब तुम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे, ओके, तो एकदम से तुम प्रोग्रामर नहीं बन जाओगे.
अगर मैं तुमको कोई प्रॉब्लम दूंगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ n, तो बिगिनिंग में तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुमको काफी टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद ही तुम्हारा वो स्किल डेवलप होगा, लॉजिक डेवलप होगा। तो इधर ये जो वर्ड ना डेवलपमेंट, उस पर ध्यान देना। सो प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, अगर तुमने ऐसा सोचा, ओके, एक नॉर्मली इंजीनियर का थिंकिंग ऐसे होता है, इनफैक्ट ये जो थिंकिंग है ना, ये हर सब्जेक्ट में बैकफायर करेगा, तो ये कभी नहीं करना, बिकॉज यू आर अबाउट टू कम इनटू इंजीनियरिंग। अगर तुमने ऐसा सोचा कि हाँ मैं जितने भी सब्जेक्ट्स है वो बाद में करूंगा, आराम से लास्ट 15 दिन में मैं सब मगअप कर लूंगा, तो फिर तुम्हारा ये हाल होगा। यू विल कीप मेकिंग योर हेड ओवर इट एंड देन इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प। ओके, so you have to start from the beginning and that way only the logic will be developed. अभी अगर तुम सीपी के पास परसेंटेज की बात करो ना, तो सेमिस्टर 2 में सीपी का पास परसेंटेज नॉर्मली बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सीपी के बारे में ना लोगों को बहुत मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। आई बहुत सारे लोग मेरे को क्या बोलते हैं, इनफैक्ट अपने सेमिनार में भी एक दो स्टूडेंट ने मेरे को बोला था, तुम अगर ये एसपी क्लासेस के सेमिनार में आए थे, तो आई थिंक उसमें किसी एक लड़के ने मुझे बोला था कि मैंने पूछा था हाउ मेनी ऑफ यू नो प्रोग्राम, तो उसने बोला सर आई नो प्रोग्रामिंग, एंड मैंने उसको बोला व्हाट हैव यू लर्न, तो उसने बोला HTML। तो सबसे पहली बात, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन यू टेल मी HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? Hypertext Markup Language. हाँ, so the first thing which you should know is that HTML is a markup language, not a programming language. Programming language अलग होती है, markup language अलग होती है। Okay, so that is why HTML अगर तुमने किया है 11th 12th में, CSS तुमने किया है, okay, तो then that is not programming. Okay, अभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर बट हम, हाँ तो ये तो मैंने बोला कि सीपी क्या नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझको बोलते हैं कि सर हमने 11th 12th में प्रोग्रामिंग किया है, ओके, सो इज इट इजी फॉर मी, इज सीपी इजी फॉर मी इफ आई हैव डन प्रोग्रामिंग इन 12th स्टैंडर्ड? तो इसका आंसर यस भी है एंड नो भी है। ये आंसर मैं तुमको अपने सेशन के, मेरा जो सेशन है इसके लास्ट 15 मिनट में दूंगा। ओके, सो इन द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ माय सेशन I will only talk to those people who have done programming in their 11th 12th standard. Okay, so this question remains to be answered, इसके बारे में बताऊंगा, but for time being C programming is not HTML CSS and all those things जो तुमने शायद 11th 12th में शायद या स्कूल में किया होगा। Okay, it is not even working on the computer. अगर तुमको लगता है कि CP में तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखते हो वो सब, तो वो भी नहीं है। Alright, in CP you'll be basically writing lots and lots of programs. Now the next question is why CP is so important? Okay, चलो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से बहुत सारे लोग कॉम्स IT लोगे, डेटा साइंस लोगे, मशीन लर्निंग लोगे, तो एक काम करो, लेट्स have it as a discussion over here, okay, instead of me just keep blabbering throughout the session. तुम मुझको बोलो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, तुम इस सेशन के लिए आए हो तो तुम्हें लगता रहेगा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सीपी इंपॉर्टेंट क्यों है? एंड नथिंग इज राइट और रॉन्ग ओवर हियर, इट इज योर ओपिनियन। तो मुझे पता तुम्हें क्यों लगता है कि सीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Come on, it's okay if you give me a wrong answer. जो बोलना है बोल सकते हो। तुम्हें क्यों लगता है कि सीपी इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हें लगता है तो ऑब्वियसली। So the thing is, maybe CP is the basis and then we हाँ build बोलो, up from there. थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ऋषभ। Sir, maybe CP is the basis and then sir we build from that on to higher advanced things. Very good, very good. That was what exactly I was going to say. संकेत भी कुछ बोलना चाह रहा था। संकेत, you want to say something? Because we want to make our base stronger to achieve. Yes, absolutely. And I'm glad you realize that. देखो क्या होता है ना, सेमिस्टर 2, ओके, सेमिस्टर 2 में तुम पहली बार प्रोग्रामिंग सीखोगे, 2 का मतलब सेमिस्टर 2, और उसमें तुम सीखोगे सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? Now the biggest mistake which many students make, and I wonder कि यार ये स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, और ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉम्प IT वो सब लिया होता है। So the biggest mistake which many students make is they don't give that much importance to CP जितना उनको देना चाहिए। तो अगर तुमने CP को इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना, तो होगा क्या, तुम्हारा जो बेस है, प्रोग्रामिंग का बेस है, वो हमेशा वीक रहेगा। और जब मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना, आई मीन ऑल योर लाइफ,
even after you start working. Okay. अच्छा, एनीवे चलो हम इतना दूर नहीं जाते, हम थोड़े आगे की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। तो होता क्या है कि सेमेस्टर 2 में तुमको सी प्रोग्रामिंग होता है, फिर सेमेस्टर 3 में इफ यू हैव टेकन कॉम साइटी एंड अदर फील्ड्स, ओके, अदर से मेरा मतलब है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वो सब। सेमेस्टर 3 में तुमको जावा होगा। बाय द वे जावा सबके लिए होता है फिर से, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्ससीसी, इनको भी जावा होता है। एंड कॉम आईटी वाले को एक और सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, a horribly important subject if you want to get placed in dream companies. तो ड्रीम कंपनीज वो होती है जिनका स्टार्टिंग सैलरी होता है 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, जैसे Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन। तो ये जो कंपनीज है ना, ये एक हर कॉलेज में आती हैं, हर कॉलेज में नहीं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आती हैं, एक एक दो स्टूडेंट को ही लेके जाती हैं। अगर ये तुम कोई एवरेज कॉलेज में हो तो भी टेंशन लेने का जरूरत, अगर तुमको कोई एवरेज कॉलेज में मिलता है तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुमको पूल प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। पूल का मतलब ये होता है कि ये कंपनीज क्या करती हैं कि 8-10 एवरेज कॉलेज का प्लेसमेंट एक साथ रखती है। सो एनीवे द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि इफ यू वांट टू गेट इनटू दीज कंपनीज तो तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इज अ हेवीली कोडिंग सब्जेक्ट। बाय द वे कोडिंग इज नथिंग बट प्रोग्रामिंग। आज जब अपना लेक्चर हो जाएगा ना, सैस हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक काम करना, सिर्फ मैं तुमको एक होमवर्क देता हूं, सिर्फ एक, नेट पे जाके ना, इंटरनेट पे जाके खाली ऐसा टाइप करना, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, और तुम खुद ही उसको रीड करना और देखना कि वो क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिन्होंने C++ प्रोग्रामिंग किया है, ओके, 11th-12th में तुमने शायद डेटा स्ट्रक्चर्स भी किया है, ओके, तो यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एनीवे मूविंग अहेड, फिर उसके बाद सेमेस्टर 4 में तुमको आता है पाइथन, सेमेस्टर 5 में तुमको आता है वेब डेवलपमेंट, एंड वेब डेवलपमेंट में तुम सीखते हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम जावा। फिर सेमेस्टर 6 में एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग आता है एंड सो ऑन। सो होता क्या है, अगर तुम्हारा ये वीक है ये, तो तुम्हारा ये और ये भी वीक हो गया। अगर तुम्हारा जावा वीक है तो पाइथन वीक हो गया। अगर जावा वीक है तो जावास्क्रिप्ट वीक हो गया। सो ऑल इन ऑल तुम्हारा प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स जो है ना, वो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता है। एंड दैट देन creates big problems when you go for placements or even when you go for masters. Okay, आज से 4 साल पहले की बात है, तुम अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो तुमको ये दिखाई भी देगा, ये आर्टिकल। ऐसा हुआ था कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे हैड गॉन फ्रॉम मुंबई टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग मास्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने फर्स्ट टर्म का फीस भी भरा रहेगा, 8-10 लाख रुपया जो भी होगा भरा रहेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद वहां का जो कॉलेज है, उस कॉलेज ने वो सभी 8-10 स्टूडेंट को निकाल दिया, एंड उनको रीजन दिया गया कि दे आर नॉट फिट टू परस्यू द कोर्स। ओके, अभी नॉट फिट का क्या मतलब है? नॉट फिट का मतलब है, फिर कॉलेज ने डिटेल एक्सप्रेशन दिया कि these students could not even write simple programs which every computer engineer should know. So just imagine, just because actually मुझे just because नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि just imagine that they could not write programs, and that is why they were thrown out the college in US. Okay, after they spent 8 to 10 lakh rupees. Not only that, अभी देखो मैं कितना भी कुछ भी बोलूंगा तुम लोग शायद यकीन करोगे नहीं करोगे, बट ऑब्वियसली न्यूज़पेपर से झूठ नहीं बोलेगा। ओके, सो आई सी भव्या शाह ओवर हियर। भव्या, कैन यू रीड दिस हेडलाइन ओवर हियर? कैन यू रीड दिस हेडलाइन? आकृति, कैन यू रीड इट? आकृति मेहता, कैन यू रीड इट? ठीक है, संकेत चलो तुम रीड कर दो। Poor engineering makes 47% grads unemployable, says study. तो ये एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि पुअर इंजीनियरिंग मेक्स 47% ग्रेड्स अनएम्प्लॉयबल। अच्छा, अभी ये हेडलाइन खुद ही बोल रहे हैं, समझाने की तो जरूरत नहीं है। अभी इसमें ना थोड़ा डिटेल में अगर तुम जाओगे ना, तुमको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पूरा आर्टिकल ना तुम रीड कर सकते हो।
बट ये पूरा आर्टिकल का जो जिंक्स है ना, जिंक्स, वो देखो इन्होंने इधर दिया है, इधर। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं 50% to 60% of computer science or IT engineers don't understand the subtleties of programming concepts. More than 80% are unable to apply them to real world situation. Okay. And वैसे ही सब इधर ये देखो दिया 30% engineers don't know basic theoretical concepts used in computer programming. So guys, all this happens if your base is weak. तो वो mistake तुम नहीं करना. Okay. Whether you go for coaching, whether you don't go for coaching, that is a different story at all. That will not even talk over here. But तुमको programming पे ध्यान देना है, especially if you want to pursue a career in this field. Okay. So अगर चाहिए तो इसका एक screenshot ले लो and बाद में आराम से इसको read कर सकते हो. अब तुम्हारा जो, हाँ, एक और बात जो शायद तुमको पता होगी, ये प्रोग्रामिंग इसीलिए इतना, आई मीन ये प्रोग्रामिंग क्योंकि अभी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है. प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट कोडिंग. कोडिंग इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग कोड. कोड मतलब प्रोग्राम. तो क्योंकि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई होप तुमको ये पता रहेगा. तुमने ये वर्ड सुना है कभी, ये वाला, इसका फुल फॉर्म पता है क्या है? बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या ये? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर. हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसमें नाउ इट इज मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस कोडिंग फ्रॉम 6th grade. So no matter which board you are pursuing, SSC, ICSE, CBSE, from 6th grade onwards, students को कोडिंग मैंडेटरी है. ओके. तो ये पॉलिसी क्यों बनाया गया? क्योंकि सरकार को भी ऐसा लगा, गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि इट्स हाई टाइम आवर स्टूडेंट्स टेक कोडिंग सीरियसली. Okay. Now, finally, let's talk about the paper pattern जो तुम्हारा सीपी में होता है. तो तुम्हारा जो सीपी का जो पेपर होता है ना, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक होता है थियोरी, दूसरा होता है एक्सरसाइज, और तीसरा होता है प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स. ओके. नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स है ना, it constitutes around 70% of the entire paper. Okay. Exercises, they constitute 20% of the entire paper, and sorry, ulta bola main, 10% of the entire paper, and theory 20%. Okay. And no prize for guessing. Just a minute. No prize for guessing. तुमको क्या लगता है, इधर सबसे स्टूडेंट्स मिजरेबली कौन से सेक्शन में अपीयर, आई मीन इन विच सेक्शन डू दे फेल मिजरेबली और डू दे डू मिजरेबली? तुमको क्या लगता है? थियोरी, प्रोग्राम, या ऑब्वियसली प्रोग्राम्स. ओके. वैसे इंजीनियरिंग में तुम थियोरी भी रट नहीं सकते हो. ओके. क्यों नहीं हो तुमको बाद में पता चलेगा. एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए भी तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए. बट ये और ये स्टूडेंट्स कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, but programs में they do very badly. Okay. And because of which many students end up getting a KT also. But जैसे कि मैं तुमको बार बार सेमिनार में ही बोलता था, हम तो KT की बात ही हमको नहीं करना है. हमारा एम ये होना चाहिए, हमारा एम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको पास करना है, हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं. हमारा एम ये भी होना चाहिए कि we want to become better engineers. So if you're taking comms, IT and those fields, okay, then you should know coding very well. Okay. तो ये बात तुमको याद रखनी है, ये बात तुमको हमेशा समझना है. अभी तुमको एक सैंपल पेपर दिखाता हूँ. मेरे पास ये लास्ट अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था, 2nd सेमेस्टर का सीपी का. उसका पेपर मेरे से गुम हो गया, तो मेरे व्हाट्सएप में एक ये स्क्रीनशॉट था. स्टूडेंट को कुछ डाउट था तो उसने मुझे भेजा था. अभी इधर ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 6 सब क्वेश्चंस है. तो जैसे तुम देखोगे, ये देखो, ये थियोरी है, एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी. ओके. फिर ये भी थियोरी है, डी, इफ यू कैन सी, एक्सप्लेन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे विद प्रॉपर एग्जाम्पल. अच्छा, अब मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट, यानी आई वांट डिफरेंट स्टूडेंट्स टू रीड डिफरेंट क्वेश्चंस ओवर हियर. ओके. सो all right, Aldrin Lewis, can you read this question number B? Yes, sir. Ah. Write a program to print the following pattern.
accept the number of rows from the user and display that much number of rows in output. And what is the output? Read it. 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है. Now I want let's ask someone else. Hitanshi, can you read question number C? Yes, sir. Sir, can you repeat the question, please? No, can you read? Just read the question. Question number C. Just read it. This Sir, one. question number? C. This one. Write a program to find factorial of a given number using function. Thank you. Then I want Rushan Rushan, can you read question number E? Rushan, if you can hear me, if you're there. All right. Tanay, can you read question number E? Tanay. Yes, sir. Write a program to accept elements of two-dimensional square matrix and check whether matrix is symmetric or not. Finally, Siddhi Parekh, can you read question number F? Siddhi Parekh. Yes, sir. Write a program to read title, author, and price of 5 books using array of structures. Display the records in ascending order of price. ठीक है, थैंक यू. अभी देखो इधर है ना, मुझे तुमको सिर्फ एक चीज इधर समझानी थी और वो ये, तुमने इधर 4 प्रोग्राम्स रीड किए एंड हर प्रोग्राम में ना अलग अलग चीजें बताई गई थी, अलग अलग चीजें पूछी गई थी. ओके, तो सबसे पहले जो पहला वाला था वो बोलता है कि आउटपुट ऐसा ना चाहिए 1 0 1. ठीक है. दूसरा बोलता है कि मुझको फैक्टोरियल चाहिए. तीसरा बोलता है कि एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर मैट्रिक्स. चौथा बोलता है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पे कुछ करो. सो द होल पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इन योर माइंड इज कि एवरी प्रॉब्लम ओवर हियर विल बी अ, कैन यू कंप्लीट माय स्टेटमेंट, will be a new problem for which there will be no method, and you will have to think for every problem right from scratch, and that makes programming difficult. Okay, now for time being इससे ज्यादा आज मैं कुछ तुमको सिखा नहीं पाऊंगा. Okay, because कैसा होगा, if I start teaching you programming, then it will take lots and lots of time. So today it was just an orientation from my side. Now I want you to feel free and ask me any question which you have about programming or about any subject for that matter, but not about the admission process. उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. So do you have any questions about C programming or for that matter any other subject? Any questions? Any questions? Any questions? Okay, now I want to know how many, just raise your hands, how many of you have done C++ programming in your 11th 12th standard? Please raise your hands. अच्छा, अब मैं जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना. ओके, बी अटेंटिव. पहली बात तो ये कि एक कॉमन क्वेश्चन मुझे सबका आता है कि सर शुड वी जॉइन सम अदर इंस्टीट्यूट फॉर स्टडिंग प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स एंड ऑल. सो द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर सेमेस्टर में कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको सीखना है. तो तुमको अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करना है, कहीं जाना है, तो तुम उस सेमेस्टर में जाना. फॉर एग्जाम्पल तुमको सेमेस्टर 3 में जावा आएगा, तो अगर तुमको जावा सीखना है तो तुम सेमेस्टर 3 में सीखो. पाइथन सीखना है तो सेमेस्टर 4 में सीखो. अभी सीख के मतलब नहीं है. यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे लिए एक सीक्वेंस डिजाइन करके रखा है. वो सीक्वेंस फॉलो करोगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझेगी. देयर इज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच पहले सी आता है, फिर जावा आता है, फिर पाइथन आता है. सो रीजन है. ओके, तो उसी सीक्वेंस में जाओ एंड स्टडी एज पर योर सेमेस्टर. उसके पहले कोई कोर्स ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके,
नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्लीज ध्यान से सुनना। नाउ 4:30 को हमारा मैथ्स का सैस है, मैथ्स, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट 15 minutes, whatever I'll talk, my discussion will be only with those students जिन्होंने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस किया है या C++ प्रोग्रामिंग किया है, ओके। So if you want, you all can leave the meeting for time being, okay, others, okay, and you can rejoin at 4:30 p.m. when Vinayak sir will take the math SAS, okay. एंड अगर तुमने मैथ्स का साइज बैठे हो पहले, ओके, तो फिर तुमको उसके लिए भी आने की जरूरत नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो नाउ आई रिक्वेस्ट ओनली दोस पीपल टू स्टे विथ मी जिन्होंने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस किया है। व्हाट विल टॉक इज फॉर योर बेनिफिट, ओके। So others, if you want, you can leave. If you want, you can stay. It's up to you. Okay, I am fine with both of them. Okay. All right. So now let's talk to people who have already done programming, C++ programming in 11th, 12th. Okay. So let me open something. And these people, 11th, 12th में programming की है ना, I suggest एक pen paper लेके बैठो please. Come on, I'll wait a minute for you. Please take a pen and a paper. Please take a pen and a paper. ठीक है। So अब होता क्या है ना, जिन स्टूडेंट्स ने सेमिस्टर आई एम सॉरी, जिन स्टूडेंट्स ने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस लिया है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को सच में प्रोग्रामिंग आती है, ओके। एंड कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं आती है। दे हैव जस्ट टेकन कंप्यूटर साइंस ओनली फॉर द हेक ऑफ गेटिंग सम गुड मार्क्स एंड जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर। So in the next 15 minutes, okay, you will come to know that you really know programming or not. I will give you some questions जिसका आंसर तुम्हें मुझको नहीं देना है। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं तुमको 3-4 मिनट दूंगा, उसका आंसर खुद अपने पेपर पे लिखो। अगर तुम उसको लिख पाते हो सही तरीके से, ओके, 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब यू नो प्रोग्रामिंग, और अगर नहीं तो इसका मतलब यू डोंट नो प्रोग्रामिंग। एंड जो क्वेश्चंस मैं तुमको दूंगा, दे विल बी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में नहीं आएंगे। द क्वेश्चंस व्हिच विल गेट अवर इन आवर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, दे विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट ये एकदम बेसिक रहेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि तुमको आता है क्या नहीं, ओके। सो नाउ आई गेस तुमने सबने C++ प्रोग्रामिंग किया है, एम आई राइट? कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन, यस और नो? Yes. ठीक है, Yes. हाँ, तो अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट। WACP का मतलब होता है राइट अ C++ प्रोग्राम। WACP, राइट अ C++ प्रोग्राम to read a number and display its square, to read a number and display its square। तो क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली इधर क्या करना है, तुमको यूजर से एक नंबर रीड करना है, एक इंटीजर रीड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटीजर का मतलब तुम्हें शायद पता ही होगा, जैसे 8, 5, 6 कुछ भी, और तुमको डिस्प्ले करना है उसका स्क्वायर। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, ओके। द एंटायर प्रोग्राम विद ब्रेसेस एंड ऑल कैन बी फिनिश इन 10 लाइन्स, ओके, मैक्सिमम 10 लाइन्स, ज्यादा नहीं, ओके। तो मैं तुमको 3 मिनट देता हूं, ये प्रोग्राम लिखो। I give you 3 minutes. So I'll set a timer also.
यू विल बी राइटिंग अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, भले इंजीनियरिंग में सी प्रोग्रामिंग है, बट सी प्लस प्लस लिखो चले। ठीक है, फ्यू सेकेंड्स मोर। ठीक है, 3 minutes are over. Okay, now stop writing and let's discuss. तुम में से किसी ने भी ये प्रोग्राम लिखा है क्या? And it's okay if you are wrong. I mean, I'm हाँ, तो संकेत बोलो, सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलो। हाँ, हितांशी बोलो, हितांशी बोलो। Sir, first we will write include dot iostream. बराबर, hash include iostream.h, ठीक है। हाँ, फिर Then hashtag include iostream dot conio.h, ठीक है। हाँ हाँ, but that is not any compulsory, तो ठीक है। Sir, using then main, then cout हाँ, that means see out। हाँ, see out में क्या लिखोगे? enter a number or give a number, something like that. फिर Then we will put the input into CIN. हाँ, And then if you want a square, then that numbers, the variable in which we have taken the number, we will multiply it by itself. ठीक है। And then the COUT and the output. All right, almost correct. So declaration. yeah, very good. So very good. तो सबसे पहले I will declare a variable। तो समझो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। ओके, तो वेरिएबल होगा समझो a x कुछ भी। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। फिर मैं एक सी आउट लूंगा। बाय द वे, जब सी प्रोग्रामिंग तुम करोगे ना तो सी आउट नहीं होता है, तो प्रिंट एफ होता है। तो उसमें मैं लिखूंगा समथिंग लाइक एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ओके, एंड अब यूजर जो भी नंबर देगा, यूजर जो भी नंबर देगा उसको मैं रीड करूंगा। यानी मेरे को क्या करना है, क्या समझो यूजर ने मॉनिटर पे कीबोर्ड पे टाइप किया 5, तो मेरे को 5 यूजर से लेने का है और ए को देने का है। तो मैं लिखूंगा सी इन ए। ओके, तो ए में अब वो नंबर आ गया। फिर मैं फाइनली लिखूंगा सी आउट। फिर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा स्क्वायर इज। तो आई होप तुमको पता रहेगा कि जो भी डबल कोट्स के अंदर है इज डिस्प्लेड एज इट इज। तो स्क्वायर इज ये एज इट इज आएगा, फिर वापस से ये ऑपरेटर आएगा। ओके, एंड इधर मैं लिखूंगा ए इंटू ए। तो मेरे को स्क्वायर मिल गया एंड आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके,
So this is your first program. If you could do it almost same, very good. Okay, but as I'm telling you again and again, ये तो एकदम बेसिक है, इतना सिंपल तुमको नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली मैं बेसिक से चालू कर रहा हूँ, क्यों, क्या कहते हैं, ताकि तुमको पता चले वेर यू स्टैंड. ओके, चलो अभी ये हो गया. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एनी डाउट्स, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ओके, एंड वंस अगेन तुम्हारे सेमेस्टर 2 में सी प्रोग्रामिंग है, विच इज स्लाइटली डिफरेंट, इसमें सी आउट सी नहीं आता है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो, राइट अ सी प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सी प्रोग्राम to read a number n from the user, to read a number n from the user and display all even numbers, and display all even numbers till n, till n. ठीक है, अब मैं तुमको क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन, आंसर नहीं, क्वेश्चन. तो अभी इधर तुम क्या करोगे, तुम यूजर से ना n का वैल्यू मांगोगे. समझो यूजर तुमको बोलता है n इज इक्वल टू 6. तो तुम्हारा जो आउटपुट है, तुम्हारा जो आउटपुट है, आउटपुट, वो आउटपुट है ना, आउटपुट, उसमें उसमें आना चाहिए ऐसा 2 4 6. So basically what you have done is you have displayed all the even numbers till n, till n. ठीक है, तो आएगा 2 4 6. 0 is not considered to be an even number. अच्छा, अभी समझो यूजर ने तुमको दिया n इज इक्वल टू 7. हाँ, तो तुम गेस करो आउटपुट क्या आना चाहिए, बोला आउटपुट 246. हाँ 246 ही Less आना than चाहिए. n. हाँ, क्योंकि 7 इज नॉट एन इवन नंबर. ओके, तो ठीक है, तुम 7 को इंक्लूड मत करो. ऑलराइट, सो बेसिकली अपने को ये ऐसा ऐसा आउटपुट जनरेट करना है. सो वंस अगेन आई गिव यू 3 मिनट्स, ये प्रोग्राम लिखो. ये अभी तुमको चाहिए ना, तो ये हैश इंक्लूड वॉइड में ये सब लिखने का जरूरत नहीं, इधर से लिखना शुरू करो, इधर से. ये ब्रेस के अंदर जो मेन कंटेंट आता है वो लिखना शुरू करो यहाँ से.
ठीक है, चलो एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी सबसे पहले क्या करेंगे? First, int n, हाँ इंट एन, हाँ फिर then cout enter a number. ठीक है, सी आउट एंटर अ नंबर, करेक्ट, सी आउट एंटर अ नंबर, हाँ फिर फिर c in n. सी इन एन, बराबर। तो इधर तक तुमने क्या किया, यूजर से एन का वैल्यू ले लिया, ठीक है, हाँ फिर If n by 2 परसेंटेज सिंबल आता है वो मॉड्यूलस का मॉड्यूलस, बराबर, is equal to 0, हाँ then cout no number is output like bracket. क्या क्या, सी आउट क्या, Means no number will be there, because no number will be even. अच्छा, अच्छा उसके बाद, फिर else, फिर हाँ for loop, हाँ int for I is equal to 2, I हाँ less than n, less than equal to n, I plus 2. फिर for I is loop equal to 2, I less than equal to n, n, and I plus 2. वेरी गुड, I equal to I plus 2 या I plus equal to 2, वेरी गुड। एंड इसके नीचे एक, cout I. इसके नीचे आएगा सी आउट आई। सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। तो इधर क्या होगा, अगर तुमको प्रोग्रामिंग आता है तो इधर समझो n का वैल्यू समझो 7 है, 7, तो i का पहला वैल्यू 2 होगा, हाँ, फिर वो डिस्प्ले करेगा 2, ये सी आउट डिस्प्ले करेगा 2। फिर इधर हमने लिखा i इज इक्वल टू आई प्लस 2, मैं अभी शॉर्ट में ही सिखा रहा हूँ, तुमको आता है। तो उसके बाद i का नेक्स्ट वैल्यू होगा 4, नेक्स्ट वैल्यू होगा 6, फिर एट वन स्टेज i हो जाएगा 8। बट जब i 8 हो जाएगा ना, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप रुक जाएगा, तो तुमको आउटपुट मिलेगा 2 4 6। सो इफ यू बेसिकली रोट दिस फॉर लूप, अगर तुमने फॉर लूप सही लिखा, इसका मतलब तुमको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आता है। ऑलराइट, सो इट इज फॉर यू टू सी तुमने लिखा कि नहीं, ओके मुझे कुछ नहीं बताओ। नाउ नेक्स्ट मेक इट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट नहीं, बेसिकली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, फंक्शंस पे जाते हैं, जो अपने को हेवीली जावा में यूज होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को फंक्शंस ठीक से नहीं आता है। तो राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। एंड वंस अगेन ये जो प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स है, खाली तुम्हारा सिंटैक्स चेक करने के लिए, ओके, ताकि तुम ये देख सको कि तुमको कुछ याद है कि नहीं याद है। ऑलराइट, जो यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स आता है वो इससे डिफिकल्ट होता है, जो मैंने तुमको दिखाया था एक्चुअली, ओके। अच्छा, अभी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, write a function which accepts, write a function which accepts one integer and two floating point numbers full stop। read the integer and two floating point numbers from the main and use the function to find sum of all the parameters passed
हाँ, अभी मैं तुमको है ना 15-20 सेकंड देता हूँ, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रीड करो। कम ऑन, जस्ट रीड द क्वेश्चन इन योर माइंड। सॉल्व करना चालू मत करो, खाली क्वेश्चन अपने माइंड में रीड करो। हाँ, अब तुम में से एक जन, कोई भी मेरे को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। यानी मुझको ये नहीं बताओ कि सी आउट आएगा, सी इन आएगा, वो नहीं। ओके, मुझको ये बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाली इंग्लिश में हिंदी में एक्सप्लेन करो। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू, बताओ, टेल मी, कम ऑन। खाली क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मेरे को बताओ। व्हाट इज द क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग यू टू डू, बोलो। हाँ बोलो संकेत। First, in main function, we have to declare integer and two floating numbers, हम्म, and then we have to create another class, I think so. इसमें ना हम क्लास यूज नहीं करेंगे। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भूल जाओ, तो खाली हम नॉर्मल सिंपल मेन रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। हाँ तो And then like we have to pass create another function and then pass those numbers and वेरी गुड। take a ओके sum चलो, from question. करेक्ट, फेयरली करेक्ट। नाउ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, फिर मैं तुमको है ना इसको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझो। तो तुमको इधर क्या करने का है, सबसे पहले तुमको एक फंक्शन डिजाइन करने का है, मेन फंक्शन नहीं, एक दूसरा फंक्शन डिजाइन करने का है। और ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, एक इंटीजर लेगा एंड दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेगा एज पैरामीटर्स। ठीक है। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, और जो सम आता है वो सम को रिटर्न कर देगा। मेन में तुमको क्या करने का है, मेन में तुमको ये फंक्शन को खाली यूज करने का है। तो यूज करने से मेरा मतलब क्या है, मेन में क्या करो, तुम यूजर से एक इंटीजर रीड करो, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रीड करो, फिर ये फंक्शन को कॉल करो। ओके, अगर तुमने प्रोग्रामिंग किया तो तुमको कॉलिंग का मतलब पता रहेगा। जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको तुम डिस्प्ले कर दो। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब मैं तुमको 5 मिनट देता हूं ये करने के लिए। कम ऑन, स्टार्ट। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछ।
ओके, एनीवन विद द आंसर? मैं तुमसे आंसर पूछूंगा नहीं, खाली मुझे ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया. जस्ट रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व्ड इट? I'll not ask you the answer, trust me, I won't. Just I want to know how many of you have solved it. Obviously I won't even know कि तुम्हारा solution correct है कि incorrect है. Just raise your hand. How many of you have solved it? Don't send me a message on the chat. If you have solved it, just raise your hand. Okay, Garv has solved it, and who else? And okay. Sanket, Garv. Okay, all right. Let's see. ठीक है, अभी क्विकली ये देखते हैं और उसके बाद हम अपना सैश खत्म करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. इसे ध्यान से सुनो. अभी इधर मेन में तुम क्या करो, एक इंटीजर डिक्लेयर करो, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डिक्लेयर करो. ओके, यूजर को एक सी आउट लिख के बोलो कि एंटर एन इंटीजर. यूजर जो भी इंटीजर देगा तुम उसको स्टोर करो ए में. फिर एक सी आउट लिख के यूजर को बोलो कि एंटर 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. यूजर जो भी तुमको देगा वो तुम बी एंड सी में स्टोर करो. ठीक है. अच्छा, मेन अभी भी बाकी है, मेन खत्म नहीं हुआ है. ओके, अभी एक काम करते हैं, इधर फंक्शन लिखते हैं. तो इधर हम एक फंक्शन लिखेंगे, समझो फंक्शन का नाम है सम. अब ये फंक्शन सम 3 पैरामीटर्स लेगा. तो पहला पैरामीटर होगा इंट ए, दूसरा होगा फ्लोट बी, तीसरा होगा फ्लोट सी. अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. अगर तुम इंट फ्लोट को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा? रिजल्ट का डेटा टाइप फ्लोट. बराबर. तो इधर जो रिटर्न टाइप आएगा वो आएगा फ्लोट. अब इधर रिटर्न में खाली तुम एक स्टेटमेंट डाल दो, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी. तो ये वैल्यू रिटर्न हो गया. ओके, मेन में अभी तुमको इसको कॉल करना पड़ेगा. तो तुम एक इंटीजर वेरिएबल एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इधर क्रिएट कर सकते हो, समझो एम या कुछ भी, और इधर लिख दो m इज इक्वल टू सम ऑफ a कॉमा b कॉमा c. तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल. एंड लास्ट में तुम लिख दो सी आउट m. तो अगर तुमने ऑलमोस्ट ऐसा किया है तो यू आर करेक्ट. अच्छा, any doubts about this one? And then in 2 minutes we'll terminate this SAS. Any doubts about this one? अच्छा, सुनो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. अभी मेरे ख्याल से आई थिंक देयर वर 9 और 10 स्टूडेंट जिन्होंने मुझको ये बोला कि हमने 12th में C++ प्रोग्रामिंग किया है. ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि ये जो 3 प्रॉब्लम हमने किए, अगर तुम इस 3 में से कोई भी एक नहीं कर पाए, पहला या दूसरा या तीसरा, ठीक है, कोई भी एक नहीं कर पाए, पहला या दूसरा या तीसरा, तो इसका मतलब तुमको प्रोग्रामिंग नहीं आता है. दैट आई एम वेरी श्योर, दैट आई कैन से फॉर श्योर. ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दोज 9 स्टूडेंट्स, इफ यू कुड नॉट सॉल्व एनी वन ऑफ दीज 3, दैट मीन्स यू डेफिनेटली डोंट नो प्रोग्राम. ओके, सो यू शुड नॉट बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन प्रोग्रामिंग अर्लियर. एंड मिस्टेक स्टूडेंट से यही होती है, जो खासकर जो ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मैंने क्यों लिए ना, तुमको यही समझाने के लिए कि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको प्रोग्रामिंग आती है, बट इन रियलिटी तुमको नहीं आती है. सो एनीवे, तो वन पार्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कि इफ यू कुड नॉट डू एनी वन ऑफ दीज 3, दैट मीन्स तुमको प्रोग्रामिंग नहीं आती. ओके, नाउ आई एम श्योर देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर कुड बी संकेत, देयर कुड बी गर्व, जिन्होंने ये तीनों सॉल्व किया अच्छे से. तो अगर तुमने तीनों सॉल्व किया अच्छे से, वेट, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. नाउ एज अ लास्ट एक्सरसाइज होमवर्क तुमको क्या करना है, इन द नेक्स्ट 2-3 डेज यहां जो प्रोग्राम्स हैं वो तुमको सॉल्व करने हैं. तो जैसे कि मैं तुमको बार बार बोल रहा था, मैंने जो तुमको कराया ये एक्चुअली इतना सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता है. ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने क्यों लिया, जस्ट ये टेस्ट करने के लिए. I mean, मैं चाहता था तुम खुद को टेस्ट करो कि तुमको सिंटैक्स भी याद है क्या. सिंटैक्स प्रोग्राम लिखने के लिए तुमको आना चाहिए, सिंटैक्स एंड लॉजिक दोनों आना चाहिए.
तो मुझे ये देखना था, या मैं चाहता था तुम ये देखो कि तुमको सिंटैक्स भी याद है क्या. ओके, तो अगर तुमको सिंटैक्स ही याद नहीं है तो फॉरगेट द रिमेनिंग थिंग. बट अगर तुम ये तीनों प्रोग्राम कर सके तो इसका मतलब तुमको सिंटैक्टिकल थिंग्स आता है. ओके, विच इज गुड. तो अभी यू ट्राई एंड सॉल्व प्रोग्राम नंबर बी, सी, ई एंड एफ. ओके, अगर तुम ये सब कर सकते हो अच्छे से, तो दैट मीन्स यू प्रिटी वेल नो प्रोग्रामिंग, यू प्रिटी वेल नो सीपी. Okay, so you can take a screenshot of this. You can take a screenshot of this and take this as an exercise. वैसे भी अभी फ्री हो, ऑलमोस्ट 10-15 तारीख तक फ्री बैठे हो, तो टेक इट एज एन एक्सरसाइज. अगले 2-3 दिन में ये सॉल्व करने का ट्राई करो. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? ठीक है. So now I will leave the meeting, and in next 5 to 10 minutes, Vinayak sir will join us. Okay. So if you are leaving the meeting, come back by 4:30. All right. Thank you very much. Bye.